हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? माई सेल्फ मनोहर चंदेलिया, फैकल्टी जूलॉजी। पिछले लेक्चर्स में हम स्टडी कर रहे थे फाइलम एनेलिडा के बारे में। एनेलिडा एनिमल्स आर मोर एडवांस्ड एनिमल्स देन helminthids, and these animals are metamerically segmented. Clear? So their body appear as a ring-like body in which rings are arranged on another rings. The body consists of a large number of rings. Clear? Due to the internal septum. Clear? These all animals are included in phylum Annelida. We have already learned about the general characters of Annelida. Now we start classification of Annelida. तो इसमें classification of Annelida, classification of Annelida. Annelids are classified into 4 classes on the basis of their locomotory organs such as parapodia and setae. So according to parapodia and setae, these animals classify into 4 classes. These are first class Polychaeta. These animals are classified into 4 classes. Polychaeta, second Oligochaeta, Oligochaeta, third Hirudinea, and fourth Archaeannelida. तो ये इसमें इसकी क्लासेस। नेक्स्ट Archaeannelida. These are 4 classes of phylum Annelida. First Polychaeta, Oligochaeta, Hirudinea and Archaeannelida. अब इसमें इनके कैरेक्टर्स अगर आप देखें तो मेजर इनमें जो है वो कंपैरिजन ही देख लें, डायरेक्ट सबके कैरेक्टर भी आ जाएंगे और इसके साथ साथ कंपैरिजन भी हो जाएगा सारी क्लासेस में। क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल देयर हैबिटेट। Polychaeta animals are aquatic animals. Polychaetas are aquatic animal, whereas Oligochaeta are terrestrial, found in moist soil. Hirudinea are ectoparasite, and Archaeannelida are marine aquatic animals. Clear? These are aquatic. These are aquatic animals. Oligochaeta are terrestrial, found in moist soil, and these are ectoparasite. These are ectoparasite, and Archaeannelida are also aquatic animal. Archaeannelida are also aquatic animal. Clear? ये इसमें हैबिटेट का डिफरेंस। नेक्स्ट their locomotory organs. Polychaeta have parapodia and setae for their locomotion, because these are aquatic animals. So they have parapodia for their swimming or their floating. तो फर्स्ट ऑफ ऑल Polychaeta में क्या बताएंगे? Parapodia and setae, both parapodia and setae for their locomotion,
पैरापोडिया एंड सिटी बोथ प्रेजेंट होंगे लोकोमोशन के लिए। ओलिगोकीटा हैव ओनली सिटी which present direct on their body wall, whereas in Polychaeta setae are located on their parapodia. Clear यहाँ तक? तो पैरापोडिया एंड सिटी ये दोनों प्रेजेंट होंगे। पैरापोडिया एंड सिटी प्रेजेंट फॉर their locomotion, only सिटी present for their locomotion, and also they have large number of city and they have small number of city. Clear यहाँ तक? इसमें लार्ज नंबर में सिटी प्रेजेंट होंगे, इसमें लेस नंबर में सिटी प्रेजेंट होंगे, इसीलिए दीज आर ओलिगोकीटा एंड दीज आर पोलीकीटा। पोली मीन्स लार्ज नंबर ऑफ सिटी। क्लियर? ओनली सिटी प्रेजेंट। हिरुडीनिया लोकोमोशन बाय सकर्स एंड देयर मसल्स। तो सकर्स एंड मसल्स के कारण लोकोमोशन करेंगे, और इनमें जो सकर्स होते हैं वो इनके बोथ एंड पर प्रेजेंट होंगे। क्लियर? बोथ हैंड पर सकर्स प्रेजेंट होंगे, और इन सकर्स के कारण ये उस होस्ट के ऊपर चिपके रहते हैं, और एक शकर्स को चिपका के और दूसरे शकर से जो है वो ये आगे की तरफ अपनी बॉडी को जो है वो पुल करते हैं। ऐसे करते हुए जो है ये आगे से आगे लोकोमोशन करेंगे। क्लियर? तो लोकोमोशन बाय सकर्स एंड मसल्स, एंड आर्कियनेलिडा में नो पैरापोडिया एंड सिटी। नो पैरापोडिया एंड सिटी दोनों ही एब्सेंट होंगे। पैरापोडिया एंड सिटी बोथ आर एब्सेंट। नेक्स्ट, पोलीकीटा हैव नो क्लाइटेलम। पोलीकीटा हैव नो क्लाइटेलम। क्लाइटेलम एब्सेंट। क्लियर? क्लाइटेलम और सिंगुलम is the glandular part which found in the particular segments, and it form cocoon for the fertilization between the gametes. Clear? तो gametes के बीच fertilization करने और उसके साथ साथ उसमें embryonic development के लिए जो है वो cocoon formation होती है। जैसे earthworm में जो है वो 14, 15, 16 segments होते हैं, उनमें एक डार्क बैंड जो है, डार्क बेल्ट जो है वो बना होता है। उसमें जो डार्क बेल्ट इसके अंदर बना होता है वो उसकी क्लाइटेलम होती है। क्लाइटेलम कोकून फॉर्मेशन करेगी, तो ये ग्लैंडुलर पार्ट होता है जो पोलीकीटा में एब्सेंट होगा। ओलिगोकीटा में क्लाइटेलम प्रेजेंट इन होल लाइफ। क्लाइटेलम प्रेजेंट होगा इनके अंदर थ्रू आउट लाइफ, जो है वो क्लाइटेलम प्रेजेंट होंगी। इनमें क्लाइटेलम ओनली ब्रीडिंग सीजन में बनेगी। क्लाइटेलम फाउंड इन ओनली ब्रीडिंग सीजन। क्लाइटेलम फॉर्म्ड इन ओनली ब्रीडिंग सीजन। Clitellum formed in only breeding season, and in Archaeannelida clitellum absent. In Archaeannelida clitellum also absent. Clear? Next, development. Development indirect, in which trochophore larva form. Direct development, in which no any larva form. डायरेक्ट डेवलपमेंट एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। क्लियर? तो इसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इन विच नो एनी लार्वा फॉर्म। डायरेक्ट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट ट्रोकोफोर लार्वा फॉर्म होगा। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इन विच ट्रोकोफोर लार्वा फॉर्म। डायरेक्ट डेवलपमेंट direct development and indirect development. Indirect development. Clear? Indirect development in which trochophore larva form. Direct development and indirect development. Clear? तो ये इसमें डेवलपमेंट हो गया। ये डिफरेंस एक इसमें जो है वो हिरुडीनिया क्लास की कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स जो है वो और ध्यान में रखें। जो
पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक तो हिरुडीनिया आर सैंग्विवोरस एनिमल्स विच टेक देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम द ब्लड ऑफ होस्ट। क्लियर? तो होस्ट के ब्लड को सक करते हैं, उसी से न्यूट्रिशन ले रहे हैं, इसलिए दीज आर सैंग्विवोरस। These are sanguivorous. Sanguivorous means they take their food or nutrition from the blood of host. So these animals are sanguivorous and they have suckers on their both end. Clear? Number of segments, fix number of segments 33. Number of segments 33 number of segments होंगे। Clear? Sanguivores number of segments 33 and these animals have botryoidal tissue for storage of fat. They have botryoidal tissue in their mesenchyme for storage of fat. फैट स्टोरेज के लिए इनमें बोट्रोइडल टिश्यू भी हिरुडीनिया के अंदर प्रेजेंट होता है, बाकी दूसरे एनेलिड्स में बोट्रोइडल टिश्यू नहीं होता। क्लियर यहां तक? तो ये भी स्पेसिफिक पॉइंट जो है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखें कि इनमें बोट्रोइडल टिश्यू जो है वो कौन से एनेलिड्स में प्रेजेंट होगा। तो बोट्रोइडल टिश्यू फाउंड इन हिरुडीनिया क्लास। क्लियर? एंड दे हैव a fixed number of segments. These are 33 segments and these are sanguivorous which take their nutrition from the blood of host. Clear? Now their example, Nereis, sandworms, common name sandworm, Nereis में कॉमन नेम सैंडवर्म। क्लियर? Nereis में इनकी ब्रीडिंग सीजन में सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने के लिए इनमें बॉडी डिफरेंशिएशन हो जाता है। पोस्टीरियर पार्ट इज लार्जर देन देयर एंटीरियर पार्ट। क्लियर? देयर पोस्टीरियर पार्ट is larger than their anterior part for their reproduction and this part is known as epitoke and the smaller part in anterior region that is atoke region. Clear? तो ये atoke और epitoke region में differentiate हो जाएगा। epitoke region of the Nereis is their sexual part. Clear? तो इस स्टेज में जो है वो Nereis क्या होगा? Heteronereis. Clear? Nereis in their sexually reproducing stage that is heteronereis. Clear? So Nereis or sandworm common name. Next Aphrodite. Example Aphrodite common name sea mouse. Aphrodite common name sea mouse. Next Chitopterus. Next Chitopterus. Chitopterus paddleworm. Chitopterus paddleworm. Clear? ये इसमें एग्जाम्पल पोलिकीटा। क्लियर? नेक्स्ट इन ओलिगोकीटा एग्जाम्पल फेरेटिमा. Ferretima posthuma is a North Indian earthworm. Common name North Indian earthworm. Common name North Indian earthworm. Dravida and Megascolex is South Indian earthworm. Dravida and Megascolex. Dravida and Megascolex is South Indian earthworm. Dravida and Megascolex is South Indian earthworm.
क्लियर? तो ये मेगास्कोलेक्स साउथ इंडियन अर्थवर्म and it is the largest earthworm. Clear? Megascolex is the largest earthworm and it also known as South Indian earthworm. Dravida and Megascolex both are South Indian earthworm. Clear? Next, Hirudinea. Hirudinea में example Hirudinaria, cattle leech, Hirudinaria, cattle leech. Clear? Hirudinaria, cattle leech. Hirudinaria secrete a anticoagulant hirudin in host which coagulate the blood. तो ब्लड को कोएगुलेट करने के लिए एंटीकोएगुलेंट सिक्रीट करती है, ब्लड को कोएगुलेट होने से रोकने के लिए इसमें एंटीकोएगुलेंट हिरुडीन सिक्रीट करती है, जिससे जब तक ये ब्लड को सक करती रहे तब तक वहां ब्लड की क्लोटिंग नहीं हो. क्लियर? तो ये हिरुडिनेरिया, पोंटोबडेला, हिरुडिनेरिया पोंटोबडेला, कॉमन नेम स्केट सकर, पोंटोबडेला कॉमन नेम स्केट सकर. क्लियर? हिरुडिनेरिया, पोंटोबडेला, these are Hirudinia class. Clear? उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल आर्कियनेलिडा में पोलीगोर्डियस, it is a living fossil. Polygordius, it is a living fossil. Clear? It is the classification of phylum Annelida. Now we start next phylum. Next phylum is the Arthropoda. Arthropoda is a well organized and a advanced phylum than Annelida. Clear? And it is the largest phyla in animal kingdom. Now we start phylum Arthropoda. Phylum Arthropoda. Arthropoda, it composed of two terms, arthro plus poda. Arthro plus poda. Arthro means jointed and poda means legs or appendages. Clear? Arthro means jointed. Arthro means jointed and poda means appendages. Poda means appendages. The animals which have jointed appendages or jointed legs are included in phylum Arthropoda. Clear? The animals which have jointed legs or jointed appendages are included in phylum Arthropoda. Clear? Arthropoda is the largest phylum in animal kingdom, which have 9 lakh living species, so it is the largest phylum. Clear? Arthropoda एनिमल किंगडम में सबसे ज्यादा लिविंग स्पीशीज जो होती है वो आर्थ्रोपोडा में ही है, एंड मोस्ट ऑफ द डाइवर्सिटी ऑल्सो फाउंड इन आर्थ्रोपोड्स फाइलम. क्लियर? आर्थ्रोपोडा फाइलम में डाइवर्सिटी के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो ये जनरली कॉस्मोपॉलिटन है. क्लियर? दे फाउंड इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, एक्वेटिक हैबिटेट, एरियल हैबिटेट एंड पैरासिटिक. क्लियर? Terrestrial, just like scorpion, centipede, these are terrestrial. Aquatic, crustacea, all crustaceans are aquatic animals. Aerial, insect, aerial.
एंड सम पैरासाइट्स, पैरासाइट्स में कई तरह के जो है वो इसमें पैरासाइट्स होते हैं जिनके अंदर साइक्लोप्स है, वो पैरासाइट्स की फॉर्म में होते हैं। क्लियर? तो ऐसे इनके अंदर जो है वो हर तरह के हैबिटेट्स में प्रेजेंट होंगे। तो हर तरह के हैबिटेट में होंगे, इट मीन्स दे हैव ए लार्ज डाइवर्सिटी। क्लियर? तो ये इसमें एनिमल किंगडम का एनिमल किंगडम का लार्जेस्ट फाइलम जो है वो आर्थ्रोपोडा को माना गया है। इट इज द लार्जेस्ट फाइलम, इट इज द लार्जेस्ट फाइलम इन एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम का ये लार्जेस्ट फाइलम है, तो एनिमल किंगडम का लार्जेस्ट फाइलम है। और आर्थ्रोपोडा जो नेम है वो किसने दिया? वॉन सीबोल्ड। आर्थ्रोपोडा नेम गिवन बाय, प्रपोज्ड बाय वॉन सीबोल्ड। These animals have jointed legs or jointed appendages and metamerically segmented animals. These are metamerically segmented animals and they have jointed legs. These type of animals are included in phylum Arthropoda. Clear? तो ये आर्थ्रोपोडा के स्पेसिफिक कैरेक्टर में जॉइंटेड अपेंडेजेस और जॉइंटेड लेग्स होंगे और इसके साथ साथ मेटामेरिकली सेगमेंटेड एनिमल्स होंगे। क्लियर? नेक्स्ट, जनरल कैरेक्टर्स। व्हाट इज द जनरल कैरेक्टर्स ऑफ आर्थ्रोपोड्स? जनरल कैरेक्टर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल we describe about the habit and habitat. Clear? Arthropods are habitat के according they have a large या various form of diversity. Clear? तो ये इनके अंदर जो है वो large diversity होती है। इनमें large diversity में habitat के according कैसे कैसे होंगे? ये aquatic, terrestrial, aerial and parasitic. Clear? They found in all type of habitats. Clear? तो आप देख रहे हो कि आर्थ्रोपोड्स में जो है वो सारे कीड़े मकोड़े से लेके जो है वो इनके अंदर इंसेक्ट है सारे, और इसके अंदर जो है वो स्कोलोपेंड्रा है, स्कॉर्पियोन है। ठीक है? तो ये सारे इस टाइप के जो एनिमल्स हैं, ये क्रेस्टेशिया के एनिमल्स हैं, जैसे प्रोन है, ये सारे आर्थ्रोपोड्स में हैं। तो आर्थ्रोपोड्स जो एनिमल्स है वो हर तरह के हैबिटेट में प्रेजेंट होंगे, एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल, एरियल एंड पैरासिटिक। क्लियर? मोस्टली solitary, but some are colonial, solitary or colonial, जैसे आंट्स है वो कॉलोनियल होते हैं, एपिस वो कॉलोनियल होते हैं, एपिस इंडिका, एपिस डोर्सेटा, ये सब कैसी होंगी? ये जो है वो सारी हनीबीज है वो सोशल इंसेक्ट हैं, टर्माइट्स हैं, या इसमें जो है वो आंट्स है, ये कैसे होंगे? ये जो है वो कॉलोनियल होते हैं, और बाकी कई जो कॉकरोच वगैरह जो वो सॉलिटरी भी होते हैं। क्लियर? यहाँ तक? ऐसे ही ग्रेगेरियस पेस्ट में होते हैं, जो आपने सुना होगा लोकस्ट, ये ग्रेगेरियस पेस्ट होते हैं जो भी ये एक साथ ग्रुप में रहते हैं। तो सॉलिटरी और कॉलोनियल एंड फ्री लिविंग और पैरासिटिक। फ्री लिविंग और पैरासिटिक, सॉलिटरी और कॉलोनियल, फ्री लिविंग और पैरासिटिक। नेक्स्ट, लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। विच टाइप ऑफ लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गन सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा। तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट,
नेक्स्ट पॉइंट सिमेट्री एंड जर्म लेयर, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड बाइलेटरल सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड bilateral symmetrical, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड बाइलेटरल सिमेट्रिकल। क्लियर यहां तक? तो ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे और बाइलेटरल सिमेट्रिकल होंगे। नेक्स्ट सिलोम, अकॉर्डिंग टू सिलोम these are schizosylomate and protostomes. Clear? Schizosylomate means coelom arise from the splitting of mesoderm and protostomes mouth arise from the blastopore. Clear? Schizosylomate वही पिछेव के फाइलम से आपको कंपैरिजन करते हुए नेक्स्ट टू नेक्स्ट कैरेक्टर चलते जाना है। क्लियर यहां तक? ऐसा नहीं कि फिक्स आपको पॉइंट रटने हैं कि इसमें इतने पॉइंट थे, इसमें इतने पॉइंट है। समझ में आ गई बात? बस पीछे वाले फाइलम से कंपैरिजन करते हुए चलें कि उसमें इससे हो रहा था, इसमें इससे हो रहा है। क्लियर? यही आपको याद करने का तरीका सीधा सा। तो साइजोसिलोमेट एंड प्रोटोस्टोम्स, साइजोसिलोमेट एंड प्रोटोस्टोम्स। नेक्स्ट बॉडी प्लान, सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान या ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान या फिर ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल, सो दे हैव ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, ट्यूब विद इन ट्यूब body plan. Clear? So tube within tube body plan, and their body comprises of three parts: head, thorax and abdomen. Next body, एक तो ये बता देंगे मेटामेरिकली सेगमेंटेड, बॉडी मेटामेरिकली segmented with jointed appendages, metamerically segmented with jointed appendages. Body metamerically segmented with jointed appendages. Next, body differentiate into three parts. Body differentiated into three parts. These are head, thorax and abdomen. Body differentiated into three parts. These are head, thorax and abdomen. In some animals, head and thorax are joined together to form cephalothorax, and in some animals, thorax and abdomen join to form trunk. Clear? In some animals, head and thorax join to form cephalothorax, head and thorax join to form cephalothorax, and in some animals, thorax and abdomen join to form trunk. Clear? हेड और थोरैक्स के जॉइनिंग से कौन सा पार्ट बन जाएगा? सेफेलोथोरैक्स, एंड थोरैक्स एंड एब्डोमेन की जॉइनिंग से ट्रंक पार्ट बनेगा। क्लियर? तो ये इसमें बॉडी सेगमेंट, बॉडी डिवीजन हो गया। बॉडी डिवीजन के बाद जो है वो नेक्स्ट skeleton, mostly exoskeleton which formed by the chitin. तो skeleton में chitinous exoskeleton, chitin से बना हुआ exoskeleton होगा। उसके बाद locomotion by jointed legs और by wings। इंसेक्ट जो होते हैं उनमें विंग्स भी लोकोमोशन में हेल्प कर रहे हैं।
फ्लाइट में हेल्प कर रहे हैं इनके, और जॉइंटेड लेग्स भी कर रहे हैं। क्लियर? तो लोकोमोशन बाय जॉइंटेड लेग्स एंड locomotion by jointed legs and wings, jointed legs and wings, इनसे locomotion करेंगे। Next, digestive system. The digestive system has a complete alimentary canal with specific type of mouth parts in their mouth. Mouth parts are modified for different type of feeding. These mouth parts are such as siphoning type, lapping type and biting and chewing type. तो डिफरेंट टाइप के माउथ पार्ट्स जो है वो इसमें प्रेजेंट होंगे, और ये माउथ पार्ट्स जो आपने कॉकरोच में सुने होंगे, लेब्रम, लेबियम, मैक्सिली, मैंडिबल एंड हाइपोफेरिंक्स। क्लियर? होंगे यही माउथ पार्ट्स, लेब्रम, लेबियम, मैंडिबल, मैक्सिली और हाइपोफेरिंक्स। बट दीज माउथ पार्ट्स आर मॉडिफाइड फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ फीडिंग। तो डिफरेंट टाइप की फीडिंग के अकॉर्डिंग ये मॉडिफाइड माउथ पार्ट्स होंगे। क्लियर? इसमें कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल with specific type of mouth parts, complete alimentary canal with specific mouth parts। तो ये स्पेसिफिक जो है वो माउथ पार्ट्स होंगे which are modified for different type of feeding, तो अलग अलग फीडिंग के लिए जो है वो ये माउथ पार्ट्स मॉडिफाइड होंगे। इसमें माउथ पार्ट्स आपको बता दिए, लेब्रम, लेबियम, मैंडिबल, मैक्सिली, हाइपोफेरिंक्स, these are the mouth parts, but they modified for different type of feeding. These are found as siphoning type, lapping type, biting and chewing type. These are the modification of mouth parts. Clear? तो modified for different feeding. Next, digestion कैसा होगा? एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होगा। क्लियर? एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, उसके बाद नेक्स्ट क्या बताएंगे इसमें? ये डाइजेशन हो गया। डाइजेशन के बाद रेस्पायरेशन में आप देख रहे हैं हैबिटेट, डिफरेंट हैबिटेट है, तो डिफरेंट हैबिटेट के अकॉर्डिंग इसमें रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स भी डिफरेंट होंगे। तो रेस्पायरेशन थ्रू गिल्स इन एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स, ट्रेकिया इन इंसेक्ट, बुक गिल्स एंड बुक लंग्स इन एरेक्निडा। क्लियर? तो ये डिफरेंट टाइप के इसके रेस्पायरेटरी ऑर्गन होंगे। तो रेस्पायरेशन थ्रू गिल्स, ट्रेकिया, बुक गिल्स एंड बुक लंग्स। तो रेस्पायरेशन थ्रू गिल्स, ट्रेकिया, बुक गिल्स एंड बुक लंग्स। क्लियर? गिल्स in aquatic arthropods, trachea in insect, book gills in spider and book lungs in scorpion। तो एरेक्निडा क्लास में बुक गिल्स और बुक लंग्स से रेस्पिरेशन होगा। उसके बाद रेस्पिरेशन के बाद जो है वो नेक्स्ट क्या बताएंगे? रेस्पिरेशन के बाद एक्सक्रीशन, मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज Malpighian tubule, main excretory organ Malpighian tubule, antennal gland
Malpighian tubule, coxal or green gland. Clear? Excretion through Malpighian tubules, coxal or green gland and antennal gland. And antennal gland. Clear? These are the excretory organ in arthropods. Main excretory organ is Malpighian tubule. Clear? तो ये excretory organs हो गए. Excretion के बाद जो है वो next इसका circulatory system. Circulatory system किस टाइप का होगा इनमें? Open type of circulatory system in which blood doesn't flow in specific blood vessels. It circulates to the body organs through blood sinuses such as pericardial sinus, perivisceral sinus, perineural sinus, as you learn in cockroach. Clear? तो ये इसमें open type of blood circulatory system, open blood circulatory system, open blood circulatory system. नेक्स्ट ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होगा इनमें जो स्पेसिफिक ब्लड वेसल्स में नहीं होकर ब्लड साइनसेस के थ्रू फ्लो करता है और रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो है वो ब्लड में एब्सेंट होगा. रेस्पिरेटरी पिगमेंट एब्सेंट और रेस्पिरेटरी पिगमेंट के एब्सेंट होने के कारण ही इनका ब्लड जो है वो लिम्फ की तरह ट्रांसपेरेंट या वाटर लाइक जो है वो इनमें ब्लड होता है. इसलिए ऐसे ट्रांसपेरेंट या वाटर लाइक ब्लड को जो है वो क्या कहेंगे इसमें? हीमोलिम्फ कहेंगे. आर्थ्रोपोड्स में जो ब्लड होता है वो क्या होता है? हीमोलिम्फ. ड्यू टू एब्सेंस ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट. क्लियर? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट देयर ब्लड इज हीमोलिम्फ. तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो है वो इसमें एब्सेंट होगा इसलिए इसको हीमोलिम्फ कहेंगे. इसमें भी एक्सेप्शन है. क्रस्टेशिया जो क्लास है, क्रस्टेशिया क्लास में, क्रस्टेशिया क्लास के जो एनिमल्स है इनके ब्लड में हीमोसाइनिन पिगमेंट होगा. हीमोसाइनिन इनके अंदर जो है वो कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट हीमोसाइनिन पिगमेंट प्रेजेंट होगा और हीमोसाइनिन पिगमेंट की प्रेजेंस के कारण इनका ब्लड जो है वो ब्लू कलर का होता है. क्लियर? यहां तक किसमें होगा? केवल क्रस्टेशिया क्लास में. पेलिमोन, प्रोन है, साइक्लोप्स है, इनके अंदर ब्लड ब्लू कलर का होगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोसाइनिन. इट इज द कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट which only found in Crustacea. But in other arthropods, blood cannot help in the transportation of O2 and CO2. Clear? Blood का O2 CO2 के ट्रांसपोर्टेशन में कोई रोल नहीं होता. क्लियर? यहां तक आर्थ्रोपोडा में छोड़कर क्रस्टेशिया को. क्लियर? तो नेक्स्ट ये इसमें ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम. ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बाद जो है वो नेक्स्ट क्या बताएंगे इसमें? नर्वस सिस्टम. ये नर्वस सिस्टम कंपोज ऑफ नर्व रिंग, नर्वस सिस्टम कंपोज ऑफ सर्कम इसोफेजियल नर्व रिंग प्लस वेंट्रल नर्व कोड. ब्रेन रिंग कह दो, सर्कम इसोफेजियल जो है वो ब्रेन रिंग या सर्कम इसोफेजियल नर्व रिंग. इसमें जो सेरिब्रल गैंग्लियन होते हैं इसोफेगस के ऊपर, सेरिब्रल गैंग्लियन, इसोफेगस के नीचे सब इसोफेजियल गैंग्लियन, और ये कमीशोर्स और कनेक्टिव के थ्रू जो है वो कनेक्ट होके और ये इसोफेगस के चारों तरफ एक रिंग बनाएंगे. सब इसोफेजियल गैंग्लियन से डबल वेंट्रल नर्व कोड निकलेगी जो इनकी पूरी बॉडी के अंदर एक्सटेंडेड होती है और हर सेगमेंट पर सेगमेंटल गैंग्लियन प्रेजेंट होंगे. क्लियर यहां तक? तो नर्वस सिस्टम कंपोज्ड ऑफ सर्कम इसोफेजियल नर्व रिंग, सर्कम इसोफेजियल नर्व रिंग प्लस वेंट्रल नर्व कोड, डबल वेंट्रल नर्व कोड. क्लियर? तो नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सर्कम इसोफेजियल नर्व रिंग एंड वेंट्रल नर्व कोड. क्लियर? नेक्स्ट सेंस ऑर्गन्स.
Next, sense organs are compound and simple eyes, antenna, and statocyst. Sense organs, antenna, simple and compound eyes, Clear? Sense organs are antenna, simple and compound eyes. Next, इसके गस्टेटोरिसेप्टर found in their maxillae. Clear? This type of sense organs or receptors are found in their body. Sense organs के बाद रिप्रोडक्शन से रिलेटेड बताएंगे कैसे होंगे. These are unisexual or bisexual. तो both unisexual and bisexual, both टाइप के होंगे, यूनिसेक्सुअल भी होंगे और बाइसेक्सुअल भी होंगे. तो यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल, internal and external fertilization, both type of fertilization, internal and external fertilization. Clear? फर्टिलाइजेशन जो है वो भी इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह का होगा, यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल दोनों टाइप के होंगे. और उसके बाद जो है वो नेक्स्ट इसमें डेवलपमेंट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, डायरेक्ट एंड indirect development. In indirect development, they produce different type of larvae such as maggots larva in flies and zoea, metazoea larva, nymph. Clear? And their larvae are modified into their adult by the process of metamorphosis. तो ये इनके अंदर जो है वो इसके जनरल कैरेक्टर्स हो गए. लार्वा के अंदर जो है वो डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट लार्वा बनेंगे. कईयों मेगालोपा लार्वा बनते हैं, कईयों मैगट्स लार्वा बनता है, ग्रब लार्वा बनते हैं. क्लियर? जोइया, मेटाजोइया लार्वा बनते हैं. वो डिफरेंट एनिमल्स के अकॉर्डिंग लार्वल फॉर्म होंगी. क्लियर? इट इज द जनरल कैरेक्टर ऑफ आर्थ्रोपोड्स. क्लियर? नाउ वी स्टार्ट क्लासिफिकेशन ऑफ आर्थ्रोपोड्स. क्लियर? हेलो, हाँ. तो बेटा अब इसमें हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ आर्थ्रोपोड्स. आर्थ्रोपोडा एनिमल्स में आपने पढ़ा है कि ये एक लार्जेस्ट फाइलम है विच हैव लार्ज नंबर ऑफ लिविंग स्पीशीज. सो इट ऑल्सो क्लासिफाइड इनटू वेरियस क्लासेस सच एज क्रस्टेशिया, डिप्लोपोडा, क्रस्टेशिया, चिलोपोडा, डिप्लोपोडा, इंसेक्टा, एरेक्निडा, मिरोस्टोमेटा एंड ओनाइकोफोरा. These are the classes of phylum Arthropoda. First class, Crustacea. Crustacea animals are aquatic, free living or parasitic. Clear? Aquatic होंगे, इसके साथ साथ free living भी होंगे, कुछ इसमें parasitic होते हैं. Parasitic just like cyclops. Clear? ये aquatic, free living and parasitic. Next, their body divide into head, thorax and abdomen. The body divisible into three parts: head, thorax and abdomen. But in some crustacea animals, head and thorax join to form cephalothorax. Head and thorax join to form cephalothorax and it covered by a chitinous plate, carapace. तो कैरापेस की प्रेजेंस जो है वो इसमें सेफेलोथोरैक्स के ऊपर प्रेजेंट होगी, जो इसका एक्सोस्केलेटन फॉर्म कर रही है. कैरापेस की प्रेजेंस के कारण ही इसको क्रस्टेशिया का है. क्लियर? तो ये इसमें बॉडी डिवाइजिबल इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन. But in some crustaceans, they have cephalothorax which surrounded by carapace chitinous plate.
Clear? Next point, they have 5 pair of walking legs in their abdominal part. They have 5 pair of walking legs in their abdominal part. Clear? Which are bifurcate at their end. Clear? Next, they have respire through gills. Respiration किससे करेंगे? Gills से respiration करेंगे. Next, their excretory organs are coxal gland or green gland. Clear? Excretion through coxal gland or green gland. Clear? तो ये इसमें इसके excretion के लिए excretory organs, their example are Palemon, which is prone. Palemon or prone, Eupagoras, is common name hermit crab. It show commensalism with sea anemone. Sea anemone is a coelenterate animal, and they perform the commensalism with sea anemone. Next, Cyclops. Cyclops, common name husband of 100 wives. ये small arthropod animals हैं, but it can fertilize large number of female at a time, so it also called husband of 100 wives. And Cyclops is a vector of Dracunculus medinensis. Clear? तो गिनिया वर्म जो है उसका ये वेक्टर होता है जिससे गिनिया डिजीज हो सकती है. क्लियर? नेक्स्ट क्लास चिलोपोडा. चिलोपोडा में जनरली जो है वो स्कोलोपेंड्रा आते हैं. चिलोपोडा में स्कोलोपेंड्रा, जिसको अपने कॉमनली जो है वो क्या कहते हैं गांव में, कंसला. क्लियर? वो इसमें चिलोपोडा में होंगे. क्लियर? दीज आर टेरेस्ट्रियल एंड कार्निवोर्स. These are terrestrial and carnivores. Body divided into head and trunk. Body divided into head and trunk, in which thorax and abdomen join to form trunk part. Clear? The body divided into head and trunk. Next, one pair walking legs in their each segment. हर segment में one pair walking legs present होंगे. Clear? एंड फर्स्ट पेयर जो वॉकिंग लेग का होगा वो इनमें पॉइजनस क्लो में मॉडिफाइड हो जाता है. क्लियर? यहां तक फर्स्ट पेयर जो है वॉकिंग लेग का वो पॉइजनस क्लो में मॉडिफाइड हो जाता है, और ये इसके प्रोटेक्शन में भी हेल्प करता है इसके खुद के, और दूसरा जो है वो इनके अंदर ये जैसे डंक मारते हैं एनिमल्स, वैसे ये पॉइजनस क्लो के थ्रू जो है वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. क्लियर? तो फर्स्ट पेयर जो वॉकिंग लेग्स का होगा वो पॉइजनस क्लो में मॉडिफाइड हो जाता है. उसके बाद नेक्स्ट, रेस्पायरेशन थ्रू ट्रेकिया एंड एक्सक्रीशन थ्रू मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स. क्लियर? इट इज द जनरल कैरेक्टर ऑफ चिलोपोडा. एग्जाम्पल सेंटीपीड और स्कोलोपेंड्रा. दे हैव 100 of walking legs, so these are also known as 100-leggers. Clear? These are also known as 100-leggers. So it is 100-leggers. Next, Diplopoda. Diplopoda animals are also terrestrial, but these are herbivorous animals. Chilopoda are carnivores, but Diplopoda are herbivorous animals. Their body divisible into head, thorax and abdomen, whereas in Chilopoda, body divided into head and trunk. Next, they have poisonous claw, which is the modification of first pair of legs. But in Diplopoda, poisonous claw absent. तो poisonous claw इसमें absent होंगे. Next, respiration through trachea. Clear? These animals respire through trachea and excretion through Malpighian tubules. Excretion through Malpighian tubules. तो ये excrete किससे करेंगे? Malpighian tubules से, respiration trachea से. तो ये इनमें similarities होती है
ये भी ट्रेकिया और मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स यूज करते हैं, इनमें भी ट्रेकिया और मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स होती हैं। एग्जाम्पल मिलीपीड और जूलस। क्लियर? इन एनिमल्स में जो एब्डोमिनल सेगमेंट होते हैं, उन थोरेसिक सेगमेंट में तो ईच सेगमेंट से 1 पेयर लेग्स प्रेजेंट होंगे, लेकिन एब्डोमिनल सेगमेंट्स में ईच सेगमेंट हैव 2 पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स, सो दीज आर ऑल्सो कॉल्ड डिप्लोपोडा। क्लियर? दीज आर ऑल्सो कॉल्ड डिप्लोपोडा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 2 पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स। क्लियर? तो ये इसमें मिलीपीड या जूलस। उसके बाद नेक्स्ट क्लास इंसेक्टा। इंसेक्टा और हेक्सापोडा क्लास के जो एनिमल्स होंगे वो टेरेस्ट्रियल होंगे और इसके साथ साथ इनमें एरियल एडेप्टेशन होंगे। क्लियर? यहां तक फ्लाइट मैकेनिज्म भी इसमें हो सकती है, तो टेरेस्ट्रियल एंड एरियल, टेरेस्ट्रियल विद एरियल एडेप्टेशन। क्लियर? नेक्स्ट, देयर बॉडी डिवाइजिबल इनटू हेड, thorax and abdomen. Body divisible into head, thorax and abdomen. Next, respiration through trachea and excretion through Malpighian tubules. Respiration trachea से और excretion Malpighian tubule से होगा। और एक इंसेक्ट जो होते हैं उनमें thoracic segment में 3 पेयर वॉकिंग लेग्स प्रेजेंट होते हैं। तो थोरेसिक सेगमेंट में 3 पेयर जो वॉकिंग लेग्स होंगे, जॉइंटेड लेग्स होंगे, उनकी प्रेजेंस के कारण ही इनको हेक्सापोडा कहा जाता है। क्लियर? यहां तक? हेक्सा मीन्स 6, पोडा मीन्स वॉकिंग लेग्स। तो 6 वॉकिंग लेग्स या 3 पेयर वॉकिंग लेग्स इनके थोरेसिक पार्ट में प्रेजेंट होंगे, सो दीज आर ऑल्सो कॉल्ड हेक्सापोडा एंड दे ऑल्सो हैव विंग्स फॉर देयर फ्लाइट। क्लियर? ऑन द बेसिस ऑफ विंग्स, Hexapoda or Insecta also classified into 2 subclasses. One is Apterygota and second is Pterygota. Clear? On the basis of wings. Apterygota have no wings and Pterygota have wings. Apterygota no metamorphosis and Pterygota metamorphosis. Clear? Apterygota में metamorphosis नहीं होती, Pterygota में metamorphosis होती है। Clear? ये एप्टेरिगोटा और टेरिगोटा में। एप्टेरिगोटा में एग्जांपल लेपिस्मा और सिल्वरफिश। एप्टेरिगोटा का एग्जांपल आप दे सकते हो लेपिस्मा और सिल्वरफिश, विच हैव नो विंग्स फॉर देयर फ्लाइट। क्लियर? तो लेपिस्मा और सिल्वरफिश जो है वो इसका एग्जांपल हो जाएगा। इसके बाद दूसरे जो है वो इसमें टेरिगोटा में एपिस, एनाफिलिस, लोकस्ट, बॉम्बिक्स। क्लियर? इनमें लोकस्ट ग्रेगेरियस पेस्ट होते हैं जो क्रॉप को जो है वो क्रॉप के लिए हार्मफुल होते हैं। लोकस्ट में आपको ध्यान होगा एक साथ जो है वो, इसको ग्रेगेरियस पेस्ट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक साथ ये झुंड में आकर जो है वो क्रॉप को चौपट कर देते हैं। जैसा आपने पिछले कुछ दिनों में पढ़ा है टिड्डी दल जो आया था, तो ये टिड्डी दल होता है जो एक साथ जो है वो खड़ी फसल को चौपट कर सकते हैं। क्लियर? यहां तक? ये लोकस्ट है वो ग्रेगेरियस पेस्ट होते हैं। एनाफिलीज है, क्यूलेक्स है, तो एनाफिलीज, क्यूलेक्स, एडीज ये मॉस्किटो के जीनस हैं जो जिनकी फीमेल जो है वो कई डिजीज की वेक्टर होती है। एनाफिलीज का आपको ध्यान होगा प्लाज्मोडियम का वेक्टर होता है मलेरिया डिजीज के लिए। क्यूलेक्स है वो वेक्टर होता है, एडीज वेक्टर होते हैं। ऐसे ये कुछ जो है इनमें वेक्टर्स होते हैं। कुछ इनमें इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट इंसेक्ट भी होते हैं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट इंसेक्ट में एपिस होती है जो हनी एंड वैक्स के प्रोडक्शन के लिए, लेसिफर लाका लेक इंसेक्ट होते हैं जो लेक प्रोडक्शन के लिए, बॉम्बिक्स मोराई ये सिल्कवर्म सिल्क प्रोडक्शन के लिए होते हैं। तो कुछ इसमें इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट आर्थ्रोपोड्स भी होते हैं, कुछ इंसेक्ट जो है वो हार्मफुल भी होंगे। क्लियर? कुछ इनमें वेक्टर होते हैं डिजीज के। उसके बाद नेक्स्ट क्लास एरेक्निडा। एरेक्निडा एनिमल्स आर एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल। क्लियर? जैसे सी स्पाइडर है वो एक्वेटिक होती है, पैलेमनियस, स्कॉर्पियन जो टेरेस्ट्रियल है। बॉडी डिवाइजिबल इनटू सेफेलोथोरैक्स एंड एब्डोमेन। बॉडी सेफेलोथोरैक्स एंड एब्डोमेन में
respiration through book gills and book lungs, book gills in spider and book lungs in Palaemnius or scorpion, excretion through Malpighian tubules and coxal gland. इनसे इनमें excretion होगा. Clear? Example, Palaemnius scorpion and Arrhenius spider. ये एरेक्निडा के एग्जाम्पल हो गए. उसके बाद नेक्स्ट क्लास, फिफ्थ क्लास है मिरोस्टोमेटा. नेक्स्ट क्लास मिरोस्टोमेटा. दीज आर मेराइन एनिमल्स. मिरोस्टोमेटा, मेराइन एनिमल्स एंड एक्वेटिक. सिक्स्थ क्लास मिरोस्टोमेटा. These are marine animals, body divisible into, marine animals होंगे, body divisible into head, cephalothorax, divisible into cephalothorax and abdomen, body divisible into cephalothorax and abdomen. Their abdomen is modified as a टेल्सन. क्लियर? ये इसमें एब्डोमिनल पार्ट जो है वो टेल्सन में मॉडिफाइड हो जाता है. तो बॉडी डिवाइजिबल इनटू सेफेलोथोरैक्स एंड एब्डोमेन. 4 पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स, 4 पेयर वॉकिंग लेग्स इन एब्डोमेन. तो एब्डोमिनल पार्ट में 4 पेयर वॉकिंग लेग्स होंगे. respiration through book gills, respiration through book gills and excretion through Malpighian tubules, excretion through Malpighian tubules. क्लियर? ये इसमें इसके एग्जाम्पल होंगे. कैरेक्टर एग्जाम्पल इसमें ये एक्सक्रीशन थ्रो Malpighian ट्यूब्यूल. अब एग्जाम्पल इसके कौन से होंगे? लिम्यूलस, कॉमन नेम किंग क्रेब. लिम्यूलस, कॉमन नेम किंग क्रेब. क्लियर? इट इज ऑल्सो लिविंग फॉसिल. क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट क्लास मिरोस्टोमेटा के बाद नेक्स्ट क्लास है ओनाइकोफोरा. मिरोस्टोमेटा के बाद नेक्स्ट क्लास ओनाइकोफोरा. ओनाइकोफोरा आर टेरेस्ट्रियल, ओनाइकोफोरा टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, बॉडी डिवाइजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक, बॉडी डिवाइजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक. उसके बाद नेक्स्ट तो टेरेस्ट्रियल होंगे, बॉडी हेड एंड ट्रंक में डिवाइड होगी. नेक्स्ट दे हैव एंटीना इन देयर एंटीरियर एंड. एंटीना प्रेजेंट होगा एंटीरियर एंड पे. उसके बाद नेक्स्ट रेस्पिरेशन थ्रू ट्रेकिया and excretion through nephridia, excretion through nephridia. Clear? So these animals have the character of both phylum Annelida as well as Arthropoda. The presence of nephridia is the character of phylum Annelida, and the presence of trachea, it is the character of Arthropoda. Clear? So these animals have the character of both phyla Annelida as well as Arthropoda. So it is the connecting link between Annelida and Arthropoda. Clear? Example, Peripatus. Example, Peripatus, which is the connecting link between Annelida and Arthropoda. Peripatus have the character of both phyla Annelida as well as
आर्थ्रोपोडा। क्लियर? तो ये इसमें एनएल इसके आर्थ्रोपोडा का क्लासिफिकेशन। एंड नाउ वी स्टार्ट नेक्स्ट फाइलम मोलस्का। Next phylum Mollusca. Phylum Mollusca. Mollusca phylum taken from the term mollis body. Mollis means soft body. It's the term taken from mollis. Mollis means soft body. Soft bodied animals which protected from the calcareous shell are included in phylum Mollusca. Clear? These animals have soft body, but they protect their body from the water through calcareous shell. Clear? तो shell covering body जो है वो इसमें present होगी। बॉडी में सेल कवरिंग जो है वो इसमें प्रेजेंट होती है, इसलिए ऐसे एनिमल्स सारे मोलस्का फाइलम में इंक्लूड करेंगे। दीज एनिमल्स आर मोलस्का। मोलस्का टर्म गिवन बाय जॉनस्टन। Mollusca phylum proposed by Johnston. It is the second largest phylum. Second largest phylum. First largest phylum is Arthropoda and second largest phylum is Mollusca. Clear? Now we start its general character. Now we start its general characters. First, habit and habitat. Habit and habitat के according these are aquatic and some are terrestrial. Aquatic and few are terrestrial. क्लियर? तो मोस्टली एक्वेटिक होंगे जो मैराइन और फ्रेश वाटर में होंगे, और फ्यू आर टेरेस्ट्रियल, लैंड पर जो है वो कम एनिमल्स होंगे ये। नेक्स्ट, लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, एस केल्विन इसके बाद कंटिन्यू यही चलेगा। Organ system level of body organization, germ layer and symmetry. Germ layer के बेस पर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री दीज आर बाइलेटरल सिमेट्रिकल। इसमें ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड बाइलेटरल सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड बाइलेटरल सिमेट्रिकल। एक्सेप्शन बाइलेटरल सिमेट्रिकल का गैस्ट्रोपोडा मोलस्क। Gastropoda mollusca are the exception of bilateral symmetry, which are asymmetrical due to their torsioned body. Clear? These are asymmetrical due to their torsioned body. तो ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड बाइलेटरल सिमेट्रिकल, जिसमें गैस्ट्रोपोडा के अंदर बॉडी टोर्शन बॉडी होने के कारण कैसे होंगे ये? गैस्ट्रोपोडा मोलस्क आर asymmetrical. Next, coelom. Which type of coelom? Schizocoelomate and protostomes. Clear? Next, schizocoelomate and protostomes.
साइजोसिलोमेट एंड प्रोटोस्टोम्स. नेक्स्ट बॉडी प्लान, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट. कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल इट मीन्स किस टाइप के होंगे? कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान होगा. ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, ट्यूब विद इन ट्यूब body plan, tube within tube body plan, body divisible into head, muscular foot, mental and visceral hump. Clear? Body divisible into head होगा, distinct head, muscular foot, लोकोमोशन में हेल्प करेगा. बॉडी डिवाइजिबल इनटू हेड, मस्कुलर फुट, मेंटल. इट इज ए थिक स्किन सराउंड देयर बॉडी. मेंटल एंड विसरल हम्प, मेंटल एंड विसरल हम्प. क्लियर? तो बॉडी divisible into head, muscular foot, mental and visceral hump. इनमें इनकी बॉडी डिवाइड होगी. तो बॉडी डिवाइड इनटू हेड, मस्कुलर फुट, मेंटल एंड विसरल हम्प. ए मेंटल कैविटी प्रेजेंट बिटवीन द विसरल हम्प एंड देयर मेंटल. क्लियर? दैट इज मेंटल कैविटी and it act as their help in their respiration and excretion. Clear? They have mental cavity between visceral hump and mental, which help in respiration and excretion, which help in their respiration and excretion. Next, skeleton. Next, skeleton. Skeleton, they have calcareous skeleton. Calcareous, mostly exoskeleton. Mostly exoskeleton, which made up of calcium carbonate and conchiolin protein. Exoskeleton which made up of calcium carbonate plus conchiolin, calcium carbonate plus conchiolin protein. इनसे इनका स्केलेटन बना होता है जो कैलकेरियस शेल की फॉर्म में प्रेजेंट होगा. जो कैलकेरियस शेल है वो इसकी 3 लेयर्स में प्रेजेंट होगा. कैलकेरियस शेल इज मेड अप ऑफ 3 लेयर, which is periostracum, 3 layer periostracum, second ostracum, periostracum, ostracum and inner layer is hypoostracum. Clear? ये इसमें कैलकेरियस शेल है, सेल कवरिंग प्रेजेंट होगी इसमें. तो मोस्टली जो है वो इनमें एक्सोस्केलेटन होता है. इसमें एक्सेप्शन है इसकी सेफेलोपोडा क्लास. सेफेलोपोडा क्लास में एक्सो के साथ साथ एंडोस्केलेटन भी प्रेजेंट होता है और कुछ एनिमल्स में स्केलेटन एब्सेंट भी होता है. कौन सी क्लास में? सेफेलोपोडा क्लास में. क्लियर? यहां तक. लास्ट इसकी 6th क्लास है सेफेलोपोडा. उस क्लास के एनिमल्स में एक्सो के साथ साथ एंडोस्केलेटन भी होगा और उसके अलावा कुछ एनिमल्स में स्केलेटन एब्सेंट भी होगा. क्लियर? तो कैलकेरियस शेल जो है वो इसका एक्सोस्केलेटन फॉर्म करेंगी, विच कंप्राइजेज ऑफ 3 लेयर. आउटर लेयर इज पेरियोस्ट्रेकम, मिडिल लेयर इज ओस्ट्रेकम एंड इनर लेयर हाइपोस्ट्रेकम. क्लियर? एंड इट मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड conchiolin protein. Clear? Next, locomotion through muscular foot. Locomotion by muscular foot. Locomotion by muscular foot. Next, digestive system. Digestive system में
इनके अंदर क्या होगा, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल विद डाइजेस्टिव ग्लैंड हिपेटो पेनक्रियाज। क्लियर, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल with digestive gland, complete alimentary canal with digestive gland, hepatopancreas, the complete alimentary canal with digestive gland, hepatopancreas. It is a single gland which act as both function, liver as well as pancreas. Clear? तो लीवर और पैनक्रियाज दोनों के फंक्शन जो है वो परफॉर्म करती हैं, बाइल जूस का सिक्रीशन एज वेल एज पैनक्रियाटिक एंजाइम्स, सो इट इज ऑल्सो कोल्ड हिपेटोपैनक्रियाज। क्लियर? तो ये हिपेटोपैनक्रियाज टाइप की जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है वो फर्स्ट टाइम मोलस्का एनिमल्स में ही इवोल्व हुई है। क्लियर यहां तक? तो हिपेटोपैनक्रियाज जो है वो एक डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की फॉर्म में इसमें एलिमेंट्री कैनाल में जो है वो इसके एलिमेंट्री कैनाल के साथ इसके डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रेजेंट होंगी। क्लियर यहां तक? तो इसमें कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल विद डाइजेस्टिव ग्लैंड हिपेटोपैनक्रियाज एंड दे हैव रेड्यूला रेस्पिंग ऑर्गन, रेड्यूला फाइल लाइक, they have radula file like rasping organ in their mouth. क्लियर? इनके माउथ में जो है वो एक फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन क्या प्रेजेंट होगा, रेड्यूला, विच एब्सेंट इन देयर पेलिसिपोडा क्लास। क्लियर? इनकी जो क्लासिफिकेशन आप पढ़ेंगे तो उनके अंदर एक क्लास है पेलिसिपोडा जिसमें यूनियो पिंक्टाडा ये आते हैं। इन एनिमल्स में रेड्यूला एब्सेंट है, बाकी सब मोलस्क में रेड्यूला प्रेजेंट होगा। रेड्यूला इट इज द फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन विच हेल्प इन मैस्टिकेशन ऑफ फूड। क्लियर? तो ये रेड्यूला जो है वो इसमें प्रेजेंट होगा माउथ में। उसके बाद ये डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद नेक्स्ट बताएंगे रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन through gills, ctenidia, these are gill plates, gills, ctenidia and pulmonary sac, gills, ctenidia and pulmonary sac. Clear? So respiration through gills, ctenidia and pulmonary sac. Clear? Pulmonary sac act as lungs but it is undeveloped lungs. Clear? तो इसमें गिल्स, टिनिडिया एंड पल्मोनरी सेक। रेस्पिरेटरी ऑर्गन, एक्सक्रीशन थ्रू मेटानेफ्रिडिया, excretion through metanephridia, which are organobogenous or Cabers gland. Metanephridia are organobogenous or Cabers gland. तो कैबर्स ग्लैंड और ऑर्गेनोबोजेनस के थ्रू जो है ये एक्सक्रीशन करेंगे और ये दोनों ही जो है वो क्या होते हैं मेटानेफ्रिडिया। क्लियर है? नेफ्रिडिया में कौन सा टाइप है ये? मेटानेफ्रिडिया। क्लियर? तो इसमें एक्सक्रीशन थ्रू मेटानेफ्रिडिया विच आर फाउंड इन फॉर्म ऑफ ऑर्गेनोबोजेनस और कैबर्स ग्लैंड। एक्सक्रीशन के बाद नेक्स्ट सर्कुलेटरी सिस्टम, दे हैव ओपन blood circulatory system just like arthropoda. Clear? Open blood circulatory system, open blood circulatory system, exception cephalopoda, cephalopoda class. Cephalopoda animals have closed type of blood circulatory system, whereas another mollusk have open blood circulatory system. Clear?
आर्थ्रोपोड्स में भी ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, मोलस्क में भी ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जिसमें ब्लड का फ्लो ब्लड साइनसेस में होगा। और आर्थ्रोपोड्स में आपने पढ़ा था कि ब्लड में कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होता, इसलिए वो O2 CO2 के ट्रांसपोर्ट में पार्टिसिपेट नहीं करते। बट इन मोलस्का दे हैव कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट, हीमोसाइनिन पिगमेंट। दे हैव रेस्पिरेटरी पिगमेंट, they have respiratory pigment hemocyanin, they have respiratory pigment hemocyanin which are copper containing pigments and transport O2 and CO2, so their blood is blue in color. Clear? तो ये इसमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट इनमें हीमोसाइनिन होगी, ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होगा एक्सेप्ट सेफेलोपोडा। उसके बाद ये इसका सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया। सर्कुलेटरी सिस्टम के बाद नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम कंप्राइजेज ऑफ नर्व रिंग और ब्रेन रिंग एंड वेंट्रल नर्व कोड, वेंट्रल नर्व कोड। तो नर्वस सिस्टम में जो है वो वेंट्रल नर्व कोड और नर्व रिंग जो है वो इसमें नर्वस सिस्टम फॉर्म करेगी, जो सेरिब्रल गैंग्लियन और इसके अलावा जो है वो प्लूरोपिडल गैंग्लियन जो है वो इसमें नर्व रिंग बनाएंगे, और वेंट्रल नर्व कोड जो है वो इसमें पूरी बॉडी में एक्सटेंडेड होती है। नर्वस सिस्टम के बाद जो है वो नेक्स्ट इसमें बताएंगे सेंस ऑर्गन्स। नर्वस सिस्टम के बाद इसके सेंस ऑर्गन्स या रिसेप्टर्स, सेंस ऑर्गन्स, सेंस ऑर्गन्स आर टेंटिकल्स, सेंस ऑर्गन्स टेंटिकल्स, आईज, स्टेटोसिस्ट एंड ओस्फ्रेडियम, स्टेटोसिस्ट एंड ओस्फ्रेडियम। Clear? Tentacles are touch receptors, eyes photoreceptors, statocyst their balancing organ, and osphradium chemoreceptor organ. Clear? These are the sense organs found in mollusca. Next reproduction से related बताएंगे। These are unisexual as well as bisexual. These are unisexual as well as bisexual, and their bisexual animals have ovotestis as their gonads. Ovotestis means a single gonad act as a testis and ovary. Clear? तो इसमें bisexual animals में कुछ में ovotestis present होंगे, in which a single gonad act as a ovary and testis. Clear? That is ovotestis. तो यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल, एक्सटर्नल एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन, बोथ टाइप के फर्टिलाइजेशन होंगे, एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, direct and indirect development, and in indirect development trochophore, indirect development trochophore, Valizer and Glochidium larva form, Glochidium larva form. As you have already learn about the trochophore larva which form in phylum Annelida. तो Annelida और मोलस्का दोनों फाइलम में ट्रोकोफोर लार्वा फॉर्म होते हैं। क्लियर यहाँ तक? तो ट्रोकोफोर, वैलीजर और ग्लोचिडियम लार्वा बनेंगे अगर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो रहा है तो, और कुछ में डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। क्लियर? ये सारे मोलस्का के जनरल कैरेक्टर हुए। इसके बाद इसमें नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ मोलस्का, ये अपने नेक्स्ट क्लास में
नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया? ओके, बाय बेटा।